अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मौजूदा अमरीकी सदर और आइंदा टर्म के लिए रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार नामजद होने वाले डोनाल्ड ट्रंप। जी ट्रंप साहब। ट्रंप साहब पुत मैं शबस्तान सैनमे दा मालक नहीं, मैं अमरीका दा सदर हो गया होया वा। ट्रंप साहब तो तू इंज कहन दिया जी मैं कही दा चौधरी साहब हजूर टिकटां ब्लैक होन दियां तुहाडे सैनमे च। बात सुने मिस्टर ट्रंप, मैं इस बात के बावजूद आपको ट्रंप साहब कह के बुला रहा हूं कि आपकी बड़ी बहन ने बरमला आपके बारे में कहा है, और वो जो बड़ी बहन है वो कोई आम बड़ी बहन नहीं है। अच्छा। वो अमेरिका में फेडरल जज रह चुकी हैं। उन्होंने मसूफ के बारे में कहा, अपने छोटे भाई के बारे में, कि ये इंतहाई परले दर्जे के झूठे इंसान हैं। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजली। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਨਾ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ? ਜਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਨਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। सारे अमेरिका में ये बात ज़ेरे बहस है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन खबरों से। ਉਹ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੀ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਚੁੱਕੋ, ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜੀ ਮਰਿਆਨ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਡੂ ਖੱਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਟਣੀ ਬਹੁਤੀ ਦਿੰਦਾ। क्या फजूल बात कर रहे हैं। ਜਦ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 10 ਪੈਨੀਆਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਟਣੀ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਮਰਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਟਰੰਪੂ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਨਹਾਉਂਦੀ ਥੱਲੇ ਚਕੂਜ਼ੀ 'ਚ ਤੇ ਬਾਲ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ, ਦਵਾਈ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਚੌਰੀ ਸਦੀਕ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਪਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਲਜ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਪਾ ਕੇ ਆਮਲੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। अच्छा, इनकी शमशीरा ने इनको सिर्फ बेअसूल और झूठा इंसान ही करार नहीं दिया जी। उन्होंने वो जो अपनी भतीजी मैरी ट्रंप है उसके इस बयान की भी तस्दीक की है कि मसूफ ने यूनिवर्सिटी एडमिशन का जो टेस्ट दिया था, हाँ जी, वो खुद नहीं दिया था, अपने दोस्त को अपनी जगह बिठाया। ਟੂ ਮਚ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਹਸਬੇ ਹਾਲ ਦਾ ਐਂਕਰ ਬਣ, ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਫਰਾਜ ਬਣੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੂੰ ਕਦ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਹੈ? आपके घर की लड़ाई से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, क्या बात ਉਹ करते हो? ਯਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਉਹ ਤੇ ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। अच्छा ट्रंप साहब, सोशल मीडिया को छोड़ें, इल्जाम की बात करें। आपने अपनी जगह जो इम्तिहानात है वो किसी और से दिलवाए हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਐਵੇਂ ਬਗੌੜਨ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਾਕੋ, ਐਵੇਂ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੀਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਟਰੰਪ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਲੱਖ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਫਾਰਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀ ਲਵਰ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਤਾ, ਵਰਨਾ ਫਾਰਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲੀ ਆ। ਫਾਰਸੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਂ ਚੁਸਤ, ਆ ਈ ਆਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ईरान से आपकी दुश्मनी शुरू हो गई, आपने फारसी छोड़ दी। आपकी सऊदी अरब से दोस्ती थी, आप अरबी रख लेते फिर।
ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮਜਮੂਨ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰੰਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਬਾਜੀ ਮਰਿਆਣ, ਇਹ ਭਤੀਜੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? जहेज कम दे रही होगी। और नहीं पुत कीता इस वास्ते नहीं कि ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵੱਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਚੜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਰਵੱਟਾ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਚੰਗੇਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। तो अब दूसरा पुरवट्टा भी उतरवा दे, बराबर हो जाता। ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾ ਸ਼ੌਕਾ ਛੋਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। भाग शौका छोले वाला कौन है? ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਰਗ ਛੋਲੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਭਾ ਸ਼ੌਕਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਤੇ ਪਰਵੱਟਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਰਵੱਟਾ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਫੇਰ ਉੱਗ ਆਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਦੀ ਦੂਜਾ ਪਰਵੱਟਾ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਜਨਤਾ ਚ ਘਰ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨੇਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜੰਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। हमारे शो की रौनक है, इस सेगमेंट के लोग आपकी वजह से नहीं ओबामा की वजह से देखते हैं। बेशक वो खामोशी से बैठे रहे, लेकिन बकायदा वो एक डिग्निटी की तस्वीर बने हुए नजर आते हैं। एग्जैक्टली सही बोला मैंने। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸਹੀ ਬੋਲਾ ਮੈਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। Oh, yes. ਕੋ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਮੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋ ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। जनाब मैं नहीं, आप अपनी हर दूसरी बात में फैमिली मेंबर्स को घसीट लेते हैं। ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ? ये अभी डेमोक्रेटिक पार्टी है वाइस प्रेसिडेंट के लिए कमाला हैरिस को नॉमिनेट किया है। आपको पता नहीं क्या सूझी, आपने कहा कि जी अमेरिकी अवाम कमाला हैरिस को नहीं बल्कि मेरी बेटी इवांका को आइंदा का सदर देखना चाहते हैं। ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਅਬਾਨਕਾ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਐਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੀ ਆ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਸਨ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਦ ਬਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੀ 1947 ਚ। ਅਰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਐਡੀ ਹੱਛੀ ਕੋਕਲਾਚੀ ਪਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੀ ਏ। Excuse me. ਚਬਲੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਖਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀ। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਬਲਗਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇ, ਲੈਣ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਲਗਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। Oh, yes. ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਬੱਚੀ, ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। Oh, yes. ਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਾਲਜ पैदल वापस आਉਂਦੀ। मसूद ने क्या किस्मत पाई है कि अगर कोई इनकी तारीफ भी करता है वो भी तनकीद बन जाती है। अब एक अमेरिकन एंकर ने इनकी तारीफ करते हुए इनको उल्लू कहा है। पूरा अमेरिका का सोशल मीडिया जो है वो मजाक उड़ा रहा है इनका। हालांकि कहीं से लगते हैं उल्लू, इतनी ग्रेसफुल शख्सियत है। ਉਹ ਪੁੱਤੋ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉੱਲੂ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖਤ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਸੀ। अच्छा, ਤੇ ਉੱਲੂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਮਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉੱਲੂ। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, एक मरतबा फिर आपके और आपके अहलिया के दरमियान और आपकी अहलिया और आपकी बेटी के दरमियान ਉਹ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿੰਦਾ? ਹੁਣ ਫੁੱਫੀ ਭੈਣ ਮਾਂ ਭਤੀਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅਹਲੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। देखिए पूरी दुनिया ने देखा है कि एक मरतबा फिर वही मंजर नजर आया पूरी दुनिया को कि आपकी अहलिया ने आपका हाथ झटक दिया। ਓਏ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਛੋ ਮਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਲੋ ਛਿੱਤਰ ਪੌਲਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। और लेकिन इस तरह हाथ तो नहीं झटकती ना। ਓ ਯਾਰ ਜਾਣਦੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਘਰ ਵੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜਾ। और ये बातें सारी मेरी नहीं है, वो जो सामने बैठता है ना अजीजी, ये उसकी है। ਜਾਣਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਦਾ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਏ। देखा आपने, बल्कि सारी दुनिया ने देखा कि इसका हाथ इसकी बीवी ने कितनी दफा झटका है। मशल मेरी बीवी मेरा हाथ छोड़ती नहीं थी। अच्छा क्यों? वो समझती थी मैं अन्ना हूं।
ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਕਰਕੇ ਭਰਜਾਈ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਫੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। जाने दें, आपका हाथ सरेआम झटका है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਐਵੇਂ ਬਾਤ ਕਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲੈਤੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਦਾ ਕੱਟ ਵੱਜੇ ਆ ਸੀ। ਆ ਪਿੰਡੀ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਪੂਛਲਾਂ ਲਾਂਦੀਆਂ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਚੌਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੰਪੂ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਛੁਰੀ ਵੱਜ ਗਈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਤੇ ਚੀਰ ਦਬਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਝਟਕਿਆ ਹੱਥ। और लड़ाई साड़ी कोई नहीं हुई। ये फरमाइए कि आपने किस बुनियाद पे कहा है कि आपका जो मुखालिफ जो बाइडन है, आपने कहा कि अगर जो बाइडन जीत गया तो पूरी दुनिया जो है उस पे चाइनीज इकोनॉमी का कब्जा हो जाएगा और चीन अमेरिका को खा जाएगा। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ i1 i2 i3 i4 i5 11 ਤੱਕ ਪੜ ਗਏ ਆ। ਆ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਫੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 11 ਤੱਕ ਪੜਾਤਾ ਉਹਨਾਂ 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ F16 ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 16 ਤੇ ਹੀ ਫਸੇ। लेकिन F16 जो है वो इस वक्त भी दुनिया का बेहतरीन फाइटर है। वो बेहतरीन नु की करना, अगले पैसे कमाउंडे आ ही बेहतरीन ते ही लगे। अगले ने जाली अंडे बना ले आ, मूंगी दी दाल दी कापी बना ली है। बॉस प्लास्टिक दे चावल बनाते ने। देखो ना यार, प्लास्टिक दे चौल बना के उत्ते फाइबर दी दाल पा के खान दे होंदे। ओ मैं कहे भुख मिटान दे ने कि करंट कोलों बचन दे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जो चीनी के नुकसानात है ना, ये नहीं कि स्टेविया उन नुकसानात से महफूज है, बल्कि उल्टा स्टेविया में बेशुमार फायदे हैं। अच्छा भाईजान, कुछ अरसा पहले हमने स्टेविया पे बात की थी, जिसके बारे में हमने बताया था कि ये जो स्टेविया पौधा है जी, ये चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। हाँ जी, 200% नहीं, 200 गुना। ये ज़हन में रखें, 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। मैं ना जी ओदे ते मक्खी बवे ते खुशी नाल ही फौत हो जाती। इतना मीठा। अच्छा, और जब हमने वो डिस्कस किया था तो उसका बड़ा जबरदस्त रिस्पांस था, बाकायदा वो वायरल हो गया था और हर बंदा स्टेविया के बारे में बड़े जानना लोगों ने चाहता था। पूछा है वो पौधा कहाँ से मिलता है। याद है? भाई जी किसी भी मक्खी को पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें याद है तुमने एक दफा लेट नाइट मुझे फोन किया था, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे पास बैठे हुए थे, तुमने फोन किया था यार ये कहाँ से मिलता है। तो इसके ज़हन में ये था कि मेरे बेड के नीचे कोई नर्सरी लगी होगी, मैं निकाल के दे दूंगा। वो मुझे मेरे दोस्त कह रहे थे कि भाई जी वो पार्ट टाइम माली भी है। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਗਮਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, स्टेविया स्टेविया में बात कर रहे थे, इंतहाई संजीदा बात है और देखो उसने मेरा मुंह गमले जैसा बना सर दिया। आप खुद उस तरफ लेके गए हैं सर। अच्छा देखिए, अब इसलिए मैं आज इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि सितंबर शुरू हो गया, हाँ जी। तो सितंबर का जो आगाज है वही स्टेविया की काश्त का मौसम है। अच्छा, स्टेविया एक ऐसी चीज है कि आप इसको घरों में भी काश्त कर सकते हैं चीनी के मतबादल के तौर पे, और इसको आप कमर्शियल बुनियादों पे मैं अपने काश्तकार भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए वो इस तरफ आए। अक्सर हम जिक्र करते हैं कि मतबादल जो फसलें हैं ना, जो गैर रिवायती फसलें हैं, अब पाकिस्तान को, पाकिस्तानी काश्तकारों को उस तरफ आना चाहिए जहां पर गंदम और ये जो दीगर रिवायती किस्म की फसलें हैं, हाँ, गंदम, चावल, इस तरह की उन फसलों की निस्बत कई गुना ज्यादा मुनाफा मौजूद है। सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। तो ये जो सितंबर है ये आन पहुंचा है, तो अगर आप चीनी के मतबादल के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, हाँ जी, तो बेहतरीन वक्त है कि आप नर्सरियों से, कहीं से भी, किसी भी नर्सरी से जी। आप आम तौर पर नर्सरी पे एक पौधा जो है वो 50, 60, 70 रुपए का मिल जाता है।
सस्ता बड़ा है और फायदे इसके बड़े हैं। इससे पहले कि तुम ये इसके फायदे बताओ, मैं चीनी के नुकसानात बताना चाहता हूँ। चीनी के बड़े नुकसानात हैं, आप बल्कि हैरान होंगे सुन के ये कि जो हमारा फूड हम इस्तेमाल करते हैं, हर शय बीच में मिला लो, सबसे खतरनाक चीज चीनी है। चीनी में मौजूद मोनोसेक्राइड एक होते हैं, मोनोसेक्राइड यही है मोनोसेक्राइड, वो आपके जिगर के गिर्द चर्बी पैदा करता है। फिर चीनी के साथ ज़ियाबितस, जिसे हम शुगर ही कहते हैं, बीमारी जो है ज़ियाबितस, इसके इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपके लिए अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, दिल की बीमारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा। फिर चीनी के साथ जो शरियाने हैं खून की, उन पे दबाव बढ़ता है। फिर चीनी के साथ आपकी स्किन खराब होती है, आपके मुंह के ऊपर झुर्रियां। ये मेरा चीनी खा खा के बुढ़ापा नजर आ रहा है। और ये वरना कौन कहता है कि 25 साल का लड़का इतना बूढ़ा नजर आए? अच्छा, उधर देखो, चीनी ते फके मारे इनमें। उधर देखो, उधर चीनी के नुकसान है ना, स्टेविया के फायदे देखने तो इधर देखो। ये देखो ना, 65 साल का बंदा है और लड़का लग रहा है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। ये उम्र कम कर देती है। चीनी एक ऐसी चीज है कि ये उम्र कम कर देती है इंसान की। और फिर जितनी भी उम्र हो वो सेहत वाली तो हो। ये 7 बीमारियां बेशुमार नुकसान है शुगर के यार। खास तौर पे जो सबसे बड़ा नुकसान है ना इसका आजकल के मॉडर्न दौर के लिए, इससे भूख लगती है और जिससे फिर मोटापा पैदा होता है। अच्छा, मोटा होने में इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज सपोर्ट करती है वो चीनी। क्यों नहीं खाते तुम चीनी, क्यों नहीं खाते? चीनी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती यार। खावे ते तां ना एक चीनी दा दाना दुकान तो लैके उन्हों लत्तां च फसा के ते घसीट के घर जा रहे हो। नहीं, टांगों में फंसा लेता और खींचते, फिर अपने बड़े भाई को आवाज देता। हाँ, ये गल बद गई है। अच्छा, मैं बताने ये लगा था कि जो चीनी के नुकसानात है ना, ये नहीं कि स्टेविया उन नुकसानात से महफूज है, बल्कि उल्टा स्टेविया में बेशुमार फायदे हैं। जितने तुमने नुकसानात गिनवाए हैं ना, इतने ही स्टेविया में फायदे हैं। मसलन स्टेविया में कैल्शियम बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है, जो बच्चों और खवातीन की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। फिर निज़ाम के लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि ये अल्सर को खत्म करता है। फिर जो लोग जो हैं ये मैदे की तेजाबियत का शिकार रहते हैं, रात को बेचारे बेचैन रहते हैं, उसका ये बेहतरीन इलाज है। खून के नए खलिए जो हैं उनके बनने में ये मददगार होता है। सबसे बड़ी बात कि देखो ना, वो तुम कह रहे थे कि वो जो शुगर है, जाहिर है चीनी जो है वो शुगर लेवल बढ़ा देती है, शुगर कर देती है। ये उल्टा जो स्टेविया है ये शुगर लेवल कम कर देती है जिस्म में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। और सबसे बड़ी बात यार, पिछली गल में भी तू यही किया कि सबसे बड़ी बात नहीं, वो इससे 1 साल छोटी थी। सबसे बड़ी बात ये कि ये एंटीसेप्टिक है, जरासीम कश है, ये टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल होता है। और ये स्किन के लिए शायद वो जो है शुगर वो स्किन को लूज करती है, झुर्रियां डाल देती है, और ये उल्टा स्किन को ठीक करती है। कील बासों का बेहतरीन इलाज है। और ये पिछले दिनों जब ये कोविड-19 का बुखार था चारों तरफ, तो एक ही बात थी ना, कुव्वत मुदाफ़अत, इम्यूनिटी। ये जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ाती है स्टेविया जो है। अच्छा, जब हमने पहले डिस्कस किया था तो हमारे व्यूअर्स ने सवाल किया था कि बाबा आपने बता तो दिया है, तो करें कहाँ, ले कहाँ से, काश्त कैसे करें? तो 2 इसकी सतह, एक तो आप घर में काश्त कर सकते हैं, तो वो आजकल मौसम है, जैसे मैंने अर्ज किया कि आप नर्सरियों से पौधे हासिल कर सकते हैं। और जितना भी जिस तरह भी आपने इस्तेमाल करना है, आप 4, 5, 6 पौधे लगा लें, घर की छत पे लगा लें, घरों के अंदर रख लें, तो उसके पत्ते जो है ना, चाय में आप 1 या 2 पत्ते डाल लें, इतनी शानदार मजेदार चाय बनती है जिसका कोई हिसाब ही नहीं। और अगर आपने शुगर के मतबादल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो चंद पत्ते लें, उनको खुश्क कर लें, उनका पाउडर बना लें, आसानी के साथ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जी, पत्ता खोल के बाद जो बकरी भी पा किसी भी खुश, बकरी भी खुश। देखो, इसमें जो स्टेविया है ये न्यूजीलैंड के साथ ही है ना? नहीं भाई, नहीं पौधा है यार, वो ऑस्ट्रेलिया भाई, ये स्टेविया है। स्टेविया कितना मजा है। स्टेविया और पाकिस्तान के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच जारी है। और मुझे भैया ये आया है कि गोगे ने भी क्लियर किया है, स्टेविया है, स्टेविया।
अच्छा सर, ये जो स्टेविया है ये पाकिस्तान में काश्त हो रहा है सर? हाँ, पाकिस्तान में काश्त हो रहा है, लेकिन इंतहाई मामूली दर्जे पे, यानी 200 एकड़ के करीब। आप तजर्बाती तौर पे कह लें, या कुछ लोग जो है वो हमारे प्रोग्राम के बाद खास तौर पे कुछ लोगों ने घरों में इसको उगाना शुरू किया है। तो ये वैसे 200 एकड़ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अयूब ज़रई रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पाकिस्तान के 10 के करीब जो अजला हैं उनको पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे आइडियल, यानी हम बड़े कमर्शियल लेवल पे हम स्टेविया को काश्त कर सकते हैं। अब 1 एकड़ से आप सालाना, अजीजी भाईजान द ग्रेट, 50 मन के लगभग जो है वो पत्ते हासिल कर सकते हैं। जब वो खुश्क हो जाएंगे तो 30 मन रह जाएंगे। तो 30 मन जो पत्ते हैं स्टेविया के, वो लगभग जो हैं वो 6 लाख रुपए के फरोख्त हो रहे हैं। और इस फसल पे पैसे कितने लगते हैं? 80,000 रुपया, यानी 5,20,000 रुपया फी एकड़ आप सालाना हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। मैं ये सर देखिए, पाकिस्तान में 50 लाख टन जो है वो चीनी का इस्तेमाल है, और मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जो 200 एकड़ है इसको 1 लाख एकड़ से स्टार्ट ले लें ना, 1 लाख एकड़ शुरू कर लें, तो सीधा सीधा जो चीनी की मद में हमारी बचत होगी ना, उसका इस्तेमाल कम हो जाएगा। वही $1 अरब के लगभग है, और $50 करोड़ का स्टेविया पाउडर जो है, या पत्ते, पनीरी, बीज, हम ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे ये नर्सरियों पे इतना ज्यादा मिलता नहीं है। हाँ, वैसे जब हमने पहले जिक्र किया तो उस वक्त इसकी अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी। अब ये काफ़ी अवेलेबिलिटी इसकी मौजूद है नर्सरीज पे। अगर नर्सरीज पे नहीं मिलता ना, तो आप अयूब ज़रई रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी रब्ता कर सकते हैं। वही जो नर्सरी से आपको 50, 60, 70 रुपए का मिलता है, अयूब सेंटर से आपको 5 रुपए का मिल जाएगा। ये कहाँ है जी अयूब? फैसलाबाद में। अच्छा, मैं बताने ये लगा था, जब हम वॉल्यूम कहते हैं 200 गुना, तो उस वक्त भी ये मैं रिव्यूअर्स से पूछा था कि ये कैसे डिटरमिन किया जाता है। इसका सादा सा फार्मूला ये है कि 1 ग्राम स्टेविया पाउडर जो है ना, 1 ग्राम, यानी चुटकी से भी कम, 1 ग्राम, वो 200 ग्राम चीनी के बराबर है। यूं समझ ले कि 5 ग्राम जो स्टेविया पाउडर है वो 1 केजी चीनी के बराबर, 1 किलो चीनी के बराबर है। 2 बड़े, अगर लिक्विड फॉर्म में कहें हम, तो 2 जो खाने के चम्मच हैं वो 1 केजी चीनी के बराबर है। अगर आप इस कप में 2 चीनी के चम्मच डालते हैं तो उसकी बजाय आप 0.06 ग्राम स्टेविया पाउडर लेंगे। इतना सा स्टेविया पाउडर डाल इसमें डाल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कराची में हमारे ताउन से खत्म हुई थी डाड इन डिश डिश। MQM भी हो चुकी है टाई टाई फिश। वाह जरदारी साहब, जुल्फी तुम्हारा मुंह ऐसे है जैसे पिछले साल की किशमिश। नाज़रीन, कोविड-19 के बहरान के दौरान हमारे मुल्क के अक्सर निगार खाने, इन फिल्मी स्टूडियो बंदिश का शिकार रहे, लेकिन इस दौरान हमारे प्यारे अजीजी आपके लिए फिल्म बनाना, और वो भी सियासी फिल्म, नहीं भूले। आइए देखते हैं। सारा कराची डूब गया है जनाब आसफ जरदारी, मगर कायम है आपकी सरदारी। क्योंकि आप ठहरे सब पे भारी, मुतासर करती है आपकी मिलनसारी। सियासी बसात पे आपकी चालें हैं जारी। आपने इंट्रोड्यूस कराई है सियासत में फनकारी। कभी आप हथौड़ा होते हैं और कभी आरी। जान से ज्यादा ठहरी सिंध हुकूमत प्यारी। आपका दावा है कि अगली फिर है आपकी बारी। बातें तो हमेशा आप करते हैं करारी। कल तक थे खुद स्कूटर की सवारी, और आज मुलाजमीन तक के नामों पे है फरारी। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जुल्फी का मुंह ऐसे है जैसे सिंधी कुल्हाड़ी। अब आप बताएं, अब आपकी जवाब देने की है बारी। बाबा 30 साल से हम ही तो दे रहे हैं जवाब। बाकी सब पार्टियों ने तो चेहरों पे डाल रखे हैं नकाब। कोई लंदन में फिर रहा है बन के साहब, किसी ने डाल रखा है यहाँ पे खामखा का आजाब। अब तो वो भी लीडर बन गए हैं जिनके एक पाँव में नीली और दूसरे में है सुर्ख जराब। वैसे माफ करना, तुम सहाफी नहीं लगते, लगता है सर्दियों में पेडिस्टल फैन पे चढ़ाया हुआ है गुलाब।
ہم سیاستدان ہیں، نہ جی حضوری کرتے ہیں اور نہ کسی کی جاب، لہذا ہم نے زبان کھولی تو آپ لا نہ سکو گے تاب۔ بہت خوب حضور، کراچی ہے آپ سڑکیں بن چکی ہیں تالاب، اب فوج کی نہیں یہ ہے نیوی کی جاب، سرکاری محکموں میں ایمانداری ہے نایاب، چائنا کٹنگ سے لے کر کٹی پہاڑی تک 2 نمبری کا ہر جگہ ہے سیلاب۔ ایک منٹ جناب، ایک منٹ جناب، لو اوے کچی لسی کے تالاب اسی کلے لئی خراب تھے سارے نے جناب، جدو ہوئے گا حساب ادو ویخ لواں گے۔ سرکار آپ کی باتیں بجا، لیکن کورونا سے بارشوں تک کہاں ہے بلاول؟ کراچی ڈوبتا رہا اور وہ بیٹھا کھاتا رہا دال چاول۔ بلاول کو تو نظر آنا چاہیے تھا سڑکوں پر، لیکن اس کی سیاست کا ستون ہے ٹویٹر۔ وہ عملی آدمی نہیں، صرف ہے گلاں دا گالڑ۔ تو گالڑ، تیرا پیو گالڑ، تیرا دادا گالڑ، مجھے شاعر کہتے ہیں نا، تو گالڑ تیرا پیو بھی گالڑ، گالڑ نے 2 پینا ایک دوجے بن رہ نہیں سکدے، تو گالڑ میں مینا۔ گالڑ وہ ہے جس کا نام ہے عمران، کیسی کیسی سنائی تھی اس نے داستان، اب ان دعووں کا نام ہے نا نشان، ہر جگہ مارتا ہے ڈینگ، اور بعد میں دعوے ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجھے یاد آیا گوگا جب بھی بیٹھتا ہے ٹوٹ جاتی ہے پینگ۔ لیکن بلاول پھر کیسی کر رہا ہے سیاست، نہ کھل کے کر پاتا ہے تنقید اور نہ ٹھیک کرنی آتی ہے مذمت۔ عوام کی تو پہلے ہی سندھ حکومت نے مار دی ہے مت، ہر روز آتی ہے ان کی شامت، کیا سٹرا سے پانی نکالنے کی دکھائیں گے کرامت۔ بلاول آہستہ آہستہ سیکھ رہا ہے، اس کی آواز پولائٹ ہے ورنہ وہ تو مسلسل چیخ رہا ہے۔ سندھ کی حالت اتنی بری نہیں جتنی میڈیا پہ دکھائی جاتی ہے، عوام کو بھٹو سے دور کرنے کی سازش سب سمجھ آتی ہے۔ یہ کراچی میں ہمارے تعاون سے ختم ہوئی تھی ڈاڈ ان ڈش ڈش، MQM بھی ہو چکی ہے ٹائیں ٹائیں فش۔ واہ زرداری صاحب، زلفی تمہارا منہ ایسے ہے جیسے پچھلے سال کی کشمش۔ سر آپ نے قومی خزانہ کر دیا فنش۔ مخالفین سے کر کے گٹھ جوڑ، ہر محکمے کو لیا ہے نچوڑ، آپ کے بندوں نے مال اکٹھا کرنے کی لگائی ہے دوڑ، پورے سندھ کو ہڑپ کر گئے، ڈائن بھی دیتی ہے 7 گھر چھوڑ، بارش آئی تو عوام سے لیا منہ موڑ۔ یہ آپ جیسے بول رہے ہیں یہ ہم نے ہی کیا ہے صحافیوں کو چوڑ، کسی اور سے ایسے بول کے دیکھو وہ بازو سے گچی تک دیں گے مروڑ۔ یہ کرپشن کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ سنا ہے، یہ فکرہ ہمارے مخالفین نے میڈیا پہ تنا ہے۔ دہی بلے والے تک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں ہوئے برآمد، یہ پھر کس کی ہے کرامت؟ میگا کرپشن کے سب آپ کی سوغات ہیں، یقین مانے 2 نمبری میں آپ کی حکومت کے بہت بلند درجات ہیں۔ ہوئے اسی تو سن ہی نہیں سکتے۔ اصل میں آپ کے ہمارے اوپر ہی انٹ کھلے ہیں، ورنہ باقیوں کو پھول کے دیکھے وہ کون سے دودھ کے دھلے ہیں۔ 30 سالوں میں آپ سے گندے نالے تک نہ ہوئے صاف، کیونکہ ہم نے روٹی کپڑا اور مکان دیا ہے چاروں اطراف۔ لوگ آپ کے ہو چکے ہیں خلاف، عوام کبھی نہیں کرے گی معاف۔ صرف ایک دفعہ جی یہ بھٹو کہنا ہے اور ووٹ کا پھر اوپر جا پہنچنا ہے گراف۔ آپ کی حکومت بہا لے جائے گا جب عوام کے غصے کا لاوا پگھلے گا۔ ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا کیونکہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا۔ یہی پرفارمنس رہی تو اگلے الیکشن تک پارٹی ختم ہو جانی ہے۔ یاد رکھنا یہ ملک ایک کیرم بورڈ ہے اور پیپلز پارٹی گوٹیوں کی رانی ہے۔
آپ بند گلی میں ہیں اس کا اندازہ ہے. فکر نہ کرے زرداری دونوں طرف کھل جانے والا دروازہ ہے. عوام کے دلوں سے بھٹو کا ایمان نکل رہا ہے کیونکہ ابھی تو ہر گھر سے سامان نکل رہا ہے. جنید صاحب یہ جو بندے سڑک تے اپنی دال سیویاں روڑ کے بیٹھے ہوں جی. حضور والا اس بیچارے کی دال سیویاں آپ لوگوں کی وجہ سے روڑ گئی ہیں. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت اچھا بھائی جان, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈسپلن چاہے کام میں ہو, ورک پلیس پہ ہو یا کھیل کے میدان میں ہو, تو جو سب سے پہلا ملک ذہن میں آتا ہے وہ چین آتا ہے یا جاپان آتا ہے. ہاں جی بالکل. تو یہ دیکھیں بچوں کا کھیل ہے, یہ دیکھیں یہ واپڈا وہ عام طور پہ پیارا محکمہ ہے, لاڈلا محکمہ ہے جس سے عوام کو سب سے زیادہ پیار ہے غالباً. تو یہ کراچی میں کوئی ایک ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تو کے الیکٹرک کی ٹیم ایک ہفتے بعد پہنچی ہے لگانے کے لیے. تو لوگوں کا جو خوشی کا اظہار ہے وہ دیکھیں. کراچی میں گندا میلا پانی گھروں میں گھسا ہوا ہے. تو یار بارش کا پانی ہوگا, گندا پانی ہوگا نا, منرل واٹر تو نہیں ہوگا نا. یار اس طرح کا گندا پانی اور چکڑ بنا ہوا ہے سڑکوں پہ. وہاں پہ ایک دوست ہے کراچی, ریحان بھائی. ریحان بھائی کہتا ہے اپنا جی تمہیں کیا بتاؤں, میری گاڑیوں کے ٹائروں پہ پت نکل آئی. اللہ تعالیٰ کراچی کے ہمارے بھائیوں کی مشکل آسان کرے, ہم بڑے کڑے وقت سے گزر رہے ہیں. جی یہ تھا آج کا اسپیال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ چابی سے کھولا گیا تالا ہمیشہ کام آتا ہے, جبکہ ہتھوڑی سے کھولا گیا تالا ناکارہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ رشتوں کے تالے محبت کی چابی سے کھولیں, غصے کی ہتھوڑی سے نہیں. وارے واہ, اس وقت دانشور کٹ اور لاکھ ماسٹر زیادہ لگے ماشاءاللہ. کس چوک میں آپ اپنا سرخ سٹول رکھتے ہیں؟ خوش رہے, خوش رکھ کے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ